we are starting with examples of accounting process. Now, what is accounting process? How journal is to be prepared? Ledgers कैसे prepare करना है? Trial balance कैसे बनाना है? ये सब हम लोग fundamentals में सीख चुके हैं. These are sums given just for practice, ताकि एग्जाम में आप लोग सरप्राइज ना हो. तो आप लोग क्लास वर्क सेक्शन में यूनिट 1 क्लास वर्क सेक्शन देखेंगे. बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज, हम वो सेक्शन में हैं. क्लास वर्क सेक्शन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज. फ्रेंड्स, look at question 1. Question 1, you are asked to develop accounting equation from following information available at the beginning of accounting period. At the end of accounting period, balance appear as follows. Reset equation and find out profit. We are supposed to calculate profit. Now, what is your basic accounting equation, friends? Basic accounting equation is nothing but मॉडर्न अप्रोच में हमने सीखा था. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज is equal to assets. This is your basic accounting equation, correct? Suppose equity at the beginning is E0, liabilities at the beginning is L0 and assets at the beginning is A0. तो क्या हम बोल सकते हैं E0 plus L0 is equal to A0? Let's verify that. Equity मतलब capital 51,000 given है. Capital is 51,000. Liabilities मतलब loan as well as trade payables. Loan 11,500, trade payables 5,700. तो total 17,200. And that should be equal to all assets. All assets include fixed assets 12,800, inventory 22,600, trade receivables 17,500, cash at bank 15,300. तो total assets कितना होगा? Total assets will be 12,800 plus 22,600 plus 17,500 plus 15,300, 68,200. And this total is also equals to 68,200. So that is our first accounting equation. Similarly, equity, liabilities and assets. Suppose equity, liabilities and assets at year end are E1, L1 and A1. तो at the year end equity हमको नहीं दिया है. Loan and trade payables 17,300 दिया है. And that is equal to total assets. Total assets will include fixed assets of 12,720, inventory of 22,900, trade receivables of 17,500, cash at bank 15,600, 68,720. So equity will be 68,720 minus 17,300. Your capital at the year end will be
capital at the year end will be 51,420. And friends, you are also supposed to tell profit kitna hai. Profit is nothing but difference between closing capital and opening capital. So 51,420 minus 51,000, we would say 420 is your profit. Opening capital is 51,000, closing capital is 51,420. So any increase in capital may be treated as due to profit. So profit is nothing but closing capital minus opening capital. Question 2, friends. Mr. Dravid has following details related to his financials. Find out the missing figures. Profit earned during the year दिया है. Assets at the beginning of the year दिया है. Liabilities at the beginning दिया है. Assets at the end missing है. That is to be calculated. Liabilities at the end calculate करना है. Closing capital is 35,000 and total liabilities including capital at the end 50,000. See, closing capital आपको 35,000 दिया है. Now closing capital कैसे मिला होगा? Sir, opening capital plus profit is closing capital. तो हम बोल सकते हैं opening capital is nothing but closing capital minus profit. Profit इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, विल गेट ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल 35,000 दिया है, माइनस प्रॉफिट 5,000. सो ओपनिंग कैपिटल हमको कितना मिलता है? 30,000. नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज is equal to assets. कैपिटल हमको 30,000 मिल गया. Liabilities at the beginning of the year 12,000 is equal to assets. कैलकुलेट करना है, तो assets at the beginning 42,000 हो जाएगा. करेक्ट. सेम वे closing balance of assets, closing balance of liabilities and total liabilities including capital 50,000 दिया है. Now total liabilities including capital minus liabilities, minus capital is equal to liabilities. Total liabilities 50,000 minus capital कितना है? Capital कितना है? Closing 35,000. तो liabilities are 15,000. So at the year end, again closing capital plus closing balance of liabilities is equals to closing balance of assets. Closing capital 35,000, closing balance of liabilities 15,000. So total assets 50,000. So this is point A, this is point B, and this is point C. Question 3. Analyze transactions of Messrs. Sahil and Company for the month of March 19 on the basis of double entry system by adopting accounting equation approach. Transactions for the month of March 19 were as follows. Now, accounting equation is asset equal to capital plus liability. So cash, bank, furniture, all these are our assets, और capital और liabilities अपनी liabilities है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हमको बैलेंस करना है. हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन ये बैलेंस होना चाहिए, मैच होना चाहिए. लाइक फर्स्ट ट्रांजेक्शन, साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4,000.
So if Sahil is bringing 4,000 is in business, bank balance is increasing by 4,000. There is no change in cash. Bank balance is increasing by 4,000. And an equal amount of increase is there in capital also. वो बिजनेस में पैसा ला रहा है तो इक्वल अमाउंट से आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है ना. तो 4,000 इक्वल्स टू 4,000. अकाउंटिंग इक्वेशन इज गेटिंग बैलेंस्ड. अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रहा है. सेम वे कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. If cash is withdrawn from bank, cash balance increases, cash 200, and bank balance decreases. There is no impact on capital or liabilities. Asset 200 से बढ़ा, asset 200 से reduce हो गया, zero हो गया. तो हमारी assets and liabilities पे, sorry, capital and liabilities पे उसका कोई impact नहीं है. For all the transaction ये equations दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए. लोन टेकन 500, लोन टेकन 500, तो कैश इंक्रीजेस और कोई एसेट में चेंज नहीं है. एंड अगेंस्ट दैट लोन टेकन इज आवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 500. Salaries paid for the month of March 17, 300. 100 is still payable for the month of March 17. See, salary paid, salaries paid 300 and 100 is still payable. हमारा एक्सपेंस कितना हुआ? 300 पे कर दिया, 100 पे करना बाकी है. सर सैलरी का एक्सपेंस 400 का हुआ. सैलरी का एक्सपेंस 400 हुआ, मतलब 400 से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा. See, salary ultimately will impact your profit. Profit will impact your capital. तो expense के कारण capital reduce हो जाएगा. तो we would say capital will reduce by 400, but liability increases by 100. Capital reduces by 400, but liability, outstanding salary, that increases by 100. तो net impact उस तरफ कितना पड़ा? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज नेट 300 से रिड्यूस हो रहा है. तो कैपिटल इज डिक्रीजिंग बाय 400 और आपका लायबिलिटी 100 से बढ़ रहा है. तो नेट इंपैक्ट आपके कैपिटल एंड लायबिलिटीज पे क्या आ रहा है? 300 से रिड्यूस हो रहा है. एंड अगेंस्ट दैट कैश पेड 300 विल रिड्यूस योर कैश बैलेंस बाय 300. कैश पे किया है आपने 300 रुपया, उससे आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा. तो बोथ साइड्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. दोनों साइड बैलेंस हो गया ना. फर्नीचर परचेस्ड 500. फर्नीचर परचेस्ड विल इंक्रीज योर फर्नीचर बैलेंस 500 से बढ़ जाएगा. एंड कैश पे किया होगा तो कैश 500 से कम हो जाएगा. आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं होगी. तो एसेट बढ़ा, एसेट कम हुआ, नेट इंपैक्ट आपकी बुक्स पे कुछ नहीं पड़ा. इक्वेशन दोनों साइड अगेन सेम ही है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. यस सर. क्वेश्चन 5 फ्रेंड्स. फ्रॉम द following is the information provided by Mr. Gopi pertaining to the year ended 31st March 19. Find the unknowns showing computation to support your answer. क्या क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? ट्रेड रिसीवेबल्स मिसिंग है, लोन्स मिसिंग है, कैश बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल इज ऑल्सो मिसिंग. तो लेट अस कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बैलेंस कैसे मिलेगा? सी, कैश बैलेंस आपको कैसे मिलेगा? टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. सी, टोटल लायबिलिटीज कैपिटल के साथ आपको कितना दिया है? टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000. That will be equal to assets, total assets including cash 14,15,000 होना चाहिए. अच्छा, कौन कौन सा एसेट्स दिया है? मशीनरी 12,000 दिया है. एसेट्स इक्वल टू मशीनरी 12 लाख,
इन्वेंट्री 60,000, कैश नहीं पता है, कैलकुलेट करना है, बैंक 80,000, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब पॉइंट बी, वो भी कैलकुलेट करना है, एंड देन नो अदर एसेट इज गिवन। तो टोटल एसेट्स आपके पास है, बट स्टिल कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल्स बोथ आर मिसिंग। लास्ट लाइन पढ़िए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स 15,55,000 है, out of which 15 lakh have been received. So can we say point B, trade receivables, debtors will be 15 lakh 50 total sales, 15 lakh 55,000 total sales, minus 15 lakh the collection made during the year, 55,000 will be your trade receivables. तो अब आपको कैश बैलेंस मिल सकता है, टोटल एसेट्स 14,15,000 इज इक्वल टू 12 लाख मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। तो वैल्यू ऑफ कैश बैलेंस विल बी हाउ मच? $20,000. Cash balance will be 20,000, correct? Finally, लोन कैलकुलेट करना है हमको, वी नीड टू कैलकुलेट लोन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स 14,15,000 की टोटल एसेट्स है, कैपिटल, सर कैपिटल विल बी, ओपनिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस इनकर्ड 35,000, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल minus loss incurred 35,000, that will be point D, plus liabilities कौन सी है? liabilities कौन सी है सर? ट्रेड पेएबल्स है 1 लाख एंड लोन सी है, ट्रेड पेएबल 1 लाख एंड लोन का अमाउंट नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। तो 14,15,000 इज इक्वल टू 10,65,000 प्लस 1 लाख प्लस सी। तो लोन कितना होगा? 14,15,000 माइनस 10,65,000 माइनस 1 लाख, 2,50,000 is the amount of loan, and 1065 is closing capital which was missing. So please pause and copy. Now in classwork section of ledgers, question 1 देखिए, question 1 में आपको दिया है, following data is given by Mr. S, the owner, with the request to compile only the 2 personal accounts of Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 2019. तो ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हम लोग डेट वाइज ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री सोचेंगे एंड विल कीप ऑन पोस्टिंग दोज जर्नल एंट्रीज इन दीज लेजर्स। पहले दिया है 1 अप्रैल, मिस्टर एस ओज मिस्टर आर, ओज टू आर मतलब पेएबल टू आर, पेएबल टू आर मतलब आर इज आर क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस
आर के अकाउंट में दिया है 15,000। सिमिलरली मिस्टर एच ओज एस, मिस्टर एच हमें ओ करता है, मतलब हमें उससे पैसा लेना है, डेटर है, उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। आर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और एच के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। वी ओ टू आर, तो आर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 15,000। एच ओज टू अस, तो एच के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 20,000। Fourth April, R sold goods worth rupees 60,000. R is selling us goods. That means we are purchasing. हम उससे गुड्स खरीद रहे हैं, और अगर हम R से गुड्स खरीद रहे हैं तो एंट्री पास करेंगे परचेज टू R, परचेज टू R, R के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके शो करेंगे। नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 54,000। एस मतलब हमने एच को गुड सेल किया है। इफ वी आर सेलिंग गुड्स टू एच, एंट्री विल बी एच टू सेल्स, एच टू सेल्स 30,000। Record a purchase of 25,000 net from R which was sold to H at a profit of 15,000। पहले परचेज किया है हमने R से, तो परचेज टू R 25,000, परचेज टू R 25,000। और फिर H को सेल किया है, H टू सेल्स, सेम गुड्स आर सोल्ड टू H, H टू सेल्स 15,000 प्रॉफिट करके बेचा है, मतलब कितने में बेचा है 40,000। S rejected 10% of R's goods of 4th April। 4th April को जो गुड्स परचेज किया था उसका 10% हमने रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया। सो एंट्री विल बी R टू परचेज रिटर्न। R to purchase return 5,400। 19th, S issued a cash memo for 10,000 to H, who came personally for his consignment of goods urgently needed by him। So it means what? कैश मेमो हमने एच को दिया है, उसको अर्जेंटली गुड्स का कंसाइनमेंट, गुड्स का डिलीवरी चाहिए था, तो कैश देके उसको हमने गुड्स सप्लाई किया है। तो दिस इज नथिंग बट कैश सेल्स। जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश टू सेल्स। आर या एच का अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। 2022, एच क्लियर्ड हाफ हिज ड्यूज टू मिस्टर एस enjoying 0.5% cash discount of payment received। 20,000 was by check। कितना ड्यूज है एच का वो चेक करना पड़ेगा हमको। हाउ मच इज ड्यू फ्रॉम एच, दैट इज टू बी चेक्ड। कितना बैलेंस है एच के अकाउंट में? सर एच के अकाउंट में बैलेंस 90,000 का है, एच के अकाउंट में बैलेंस 90,000 का है। 90,000 का हाफ 45,000 उसने पे कर दिया है, और 45,000 पे किया है डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 0.5%। 225 डिस्काउंट डिडक्ट करके पे किया है, 20,000 बाय चेक, सो रिमेनिंग 24,775 बाय कैश। तो एंट्री कैश डेबिट
बैंक डेबिट, discount debit to H. Bank debit 20,000. Cash debit 24,775. And by discount, that is discount allowed to him, 225. 29 or 26. R's total dues less 10,000 which was held back were cleared by check enjoying a cash discount of 1,000 on payment made. So how much are total dues? It is 15,000 plus 54,000 plus 25,000 minus 5,400. 88,600 total dues है. उसमें से 1,000 is being held back. Sorry, 10,000 is being held back. तो 78,600 पे किया है. R's account debit टू चेक से दिया है. R's account debit to bank account 77,600 and to discount account 1,000. Twenty-ninth, close H's account to record the fact that all but 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. तो how much was due? Half due था ना उससे. 90,000 में से 45,000 पे कर दिया है. रिमेनिंग 45,000 लेना था. 5,000 को छोड़ के बाकी का सारा उसने पे कर दिया है एंड दैट टू बाय अ चेक. सो बैंक डेबिट 40,000. बैंक डेबिट 40,000 आउट ऑफ 45 5,000 पे नहीं किया है, बाकी का पे कर दिया है. बैड डेट डेबिट 5,000 टू H's अकाउंट. आर के अकाउंट में remaining balance is nothing but 10,000. That balance will be carried in books of next year. Correct. Pause and copy. Friends, आपको दिया है, one of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his accounts for the year ended 31st March 19. Trial balance हम लोग देख रहे हैं. Till date, he himself has recorded the transaction in books of account. As a basis for audit, Mr. Singhania furnished you with following statement. Closing inventory 574 दिया है. Last में दिया है, Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as trial balance is getting tallied. आपको चेक करना है accuracy. Whether he has correctly recorded all balances or not, वो आपको चेक करना है. स्टार्ट करते हैं. हम एक न्यू ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर देते हैं. सिंघानियाज कैपिटल 1556 दिया है. Singhania's capital is 1556. Singhania's drawings 564 दिया है. Leasehold premises 750. Sales
2750, यहां तक सब सही है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, उसका तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट साइड लिख रखा है, तो हम रेक्टिफाई करेंगे, विल करेक्टली शो इट ऑन डेबिट साइड। परचेज 1259, परचेज रिटर्न डेबिट दिया है, करेक्टली क्रेडिट साइड लिखा होना चाहिए। 264, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वही इसने किए। ट्रेड पेबल्स डेबिट साइड लिख दिया है, क्रेडिट होना चाहिए। ट्रेड एक्सपेंसेस 700, कैश एट बैंक 226, बिल्स पेबल क्रेडिट होना चाहिए 100, salaries and wages, salaries and wages 600, इन्वेंट्रीज डेबिट होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक दिया है, रेंट एंड रेट्स डेबिट 463, sales return 98 should be debited, so now find out correct total of trial balance. Question 2, friends. An inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year ended 30th June. गलत एंट्रीज की है ट्रायल बैलेंस में, हमको रेक्टिफाइड करेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट साइड शो करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 1654 क्रेडिट होना चाहिए। कैपिटल 4591, ट्रेड पेबल्स 1637,
Trade receivables 2983. Discount received 252 on credit side. Discount allowed 733 on debit side. Drawings 1200. Furniture 2155. General expense 829. Purchase 10923. Return inward, that is sales return 330. Rent and rates 314. Salaries 2520. Sales 16882. Inventory, that is opening inventory 2418. And provision for depreciation on furniture 364. Provision for depreciation 364. Now credit side total is 25580, but debit side total is not matching. Difference आ रहा है 1175 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. सारी एंट्रीज करेक्टली रिकॉर्ड करने के बाद भी डिफरेंस अगर आ रहा है तो वी विल रिकॉर्ड दैट डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट जब तक हमको एरर नहीं मिलता है. करेक्ट. तो यू मे पॉज एंड कॉपी. We are looking at questions of subsidiary books now, friends. Subsidiary books. First question. Enter the following transactions in purchase book and post them into ledger. Purchase book बनाना है. अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले सारी परचेजेस परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं. ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स खाली रिकॉर्ड होता है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है अप्रैल 4 को. वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अजय एंटरप्राइज. We are purchasing 100 dozen
Rexona हवाई चप्पल at 1200 per dozen. That comes to 1,20,000. And 200 dozen Palki leather chappal at 3,000 per dozen. Less trade discount of 10%. So total comes to 1,80,000 gross amount. Trade discount will be 18,000. मतलब नेट अमाउंट हो जाएगा 1,62,000. फ्रेट 1,500 चार्ज किया है, सो 163,500. April 15th, Balaji Traders. $50 dozen Max shoes at 4,000. And 100 pairs of sport shoes at 1,400 per pair. Again, this is subject to trade discount of 10%. Gross amount is 3,40,000. Trade discount 10% will be 34,000. So net amount will be 3,06,000. Freight paid is 2,000. So total comes to 3,08,000. April 28, Tripti Industries. $40 leather shoes at 4,000. $100 dozen Rosie Hawaii chappal at 1,800 per dozen. $1,80,000. Again, this is subject to trade discount of 10% and freight of 1,000. Gross amount comes to 3,40,000. Trade discount 34,000. 3,06,000.
Freight paid is 1000. Total gross amount 8 lakh 60. Total trade discount 86,000. Correct. Now we are also supposed to post these transactions into ledger. फ्रेंड्स, अब ये सभी ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग लेजर में करना है। तो कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग? परचेज अकाउंट फॉर दिस नेट कॉलम, फ्रेट अकाउंट और ये तीनों सप्लायर के अकाउंट। परचेज अकाउंट में सीधा परचेज बुक का टोटल मतलब नेट प्राइस का टोटल पोस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ ऑन 30th April to sundry creditors. $7,74,000. Freight account में total 4,500. Total freight paid by our suppliers on our behalf to sundry creditors. हमने पे नहीं किया है, हमारे सप्लायर्स ने हमारे बिहाफ पे किया है, उनको पे करना बाकी है. We will have to pay them. और इंडिविजुअल सप्लायर में क्रेडिट साइड, अजय एंटरप्राइज में क्रेडिट साइड ऑन April 4. By purchase by purchase 1,62,000. By freight बालाजी ट्रेडर्स में क्रेडिट साइड ऑन April 15th. By purchase 3,06,000. And freight paid is 2,000. दीप्ति इंडस्ट्रीज में भी क्रेडिट साइड बाय परचेज by freight. Correct. Friends, question number 2. Enter the following transactions in sales book of Messrs. Pranath Engineers Limited and post them into ledger, the entries of sales book. First transaction is on Jan 2. We are selling goods to Messrs. Ajanta Electricals of Delhi.
We are selling 5 pieces of ovens at 6,000 each. So it comes to 30,000 less trade discount. Trade discount of 10%. So 27,000 is the net amount of sales. और यहाँ लिखते हैं सेल्स इनवॉइस डेटेड. जो भी सेल्स इनवॉइस का डेट है, मतलब जिस दिन ये पैसा ड्यू है, जिस दिन अजंता इलेक्ट्रिकल्स को पेमेंट देना है. On 8th of Jan, again we are selling goods to Messrs Ajanta Electricals. Ten pieces of tablets at 8,000. Again less trade discount of 10%. On 15th, we are selling goods to Haryana Traders. हरियाणा ट्रेडर्स को गुड्स बेचा है 5 pieces of juicers at 3,500 each. Less trade discount. Trade discount 10%. Total of sales book. $1,14,750. पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो सेल्स बुक का टोटल सीधा सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे. और फिर कस्टमर्स के अकाउंट में डेबिट साइड. अजंता इलेक्ट्रिकल्स में डेबिट साइड टू सेल्स 27,000. $72,000. हरियाणा ट्रेडर्स में डेबिट साइड टू सेल्स
15,750. Correct? Pause and copy. Question 3, friends. Enter the following transaction in sales return book of X, dealer in college textbooks. So sales return book में हम पहला एंट्री करेंगे on June 7. Sunil and company returned 6 copies of books. 6 copies at rupees 300. And trade discount which was given to them was 10%. And then on June 10th, Y and company is returning goods. 1 copy of business law textbook. At rupees 200 per copy. So 1820 is your total sales return. Correct? From the following transactions, prepare purchase return book of Alpha and Company, a sari dealer, and post them into ledger. पहला ट्रांजेक्शन है 4/1/2019, 4th of January. We are returning goods to Goyal Mills. Five polyester saris at 1,000 each. And we purchased goods at rupees 1,000 each only, that much. 101 is your debit note number. See, 9 Jan transaction दिया है Garg Mills Kota accepted return of goods which were purchased for cash. Now we have initially purchased goods for cash and now we are returning the goods. हम लोग goods return कर रहे हैं. Return के time पे ideally he should return cash. हो सकता है कैश दे दिया हो सकता है ना दिया हो. अगर नहीं दिया होता तो हमने इसके लिए भी डेबिट नोट इशू किया होता. सिंस फॉर दिस रिटर्न कोई डेबिट नोट नंबर नहीं दिया है, कोई डेबिट नोट इशू नहीं किया है, इट इज लॉजिकल टू अज्यूम कि ऑन रिटर्निंग गुड्स हमको कैश मिल गया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड भी नहीं होगा. 16th of Jan, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर. Five silk saris at 2,600 each. तो हम बोल सकते हैं टोटल सेल्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न, are 18,000.
We are also supposed to post them in ledger. Now before we post, 30 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन दिया है, दैट इज रिटर्न ऑफ कंप्यूटर. वी आर डीलिंग इन सारीज. कंप्यूटर हमारा गुड्स नहीं है. हम तो खाली गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, रिटर्न्स बुक में. सिंस इट इज नॉट रिटर्न ऑफ गुड्स, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, नॉट इन परचेज रिटर्न बुक. पोस्टिंग सेम वैसे ही. टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक will be posted directly to purchase return account by sundry creditors. इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड. टू परचेज रिटर्न 5000. and to purchase return 13,000. Correct? Yes, sir. Now, friends, we are looking at questions of cash book. First column में a triple column cash book is to be prepared. Triple column cash book, simple rule. पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट. पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट. ऑन 1st April बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक. कैश बैलेंस 4,500, बैंक बैलेंस 18,000. Then 2nd April paid into bank 1,500, that is cash paid into bank. तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. बैंक टू कैश 1,500. सो कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए स्पेसिफाई करेंगे. बाय बैंक अकाउंट. बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, पेड बाय चेक. पेमेंट दिया है 5th April बाय फर्नीचर. Purchased goods for cash on 8th April, कैश गया by purchase. Received cash on April 12. Received cash from Mr. K and discount allowed to him 30 to Mr. K's account. We have received cash of 1,470 and we have allowed discount of 30. Cash sale, again cash आ रहा है April 14th को to sales. Paid to Mr. P, a bearer check of 2,175. पे किया है. If we are receiving a bearer check, we treat that as cash. पे किया है तो हमारा बैंक बैलेंस ही कम होगा. 2,175 in bank column, 75 in discount column. Withdrawn from bank for private use, that is drawings. Bank balance is reducing. $900.
received check from Mr. B on April 26. We are receiving check, खाली received check दिया है, कुछ और बोला नहीं है, तो we will always treat that as cash because this cash received, this check received is not deposited, जमा नहीं किया है बैंक में, चेक मिला है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज कैश एंड डिस्काउंट अलाउड इज 30. दैट इज ऑन April 24th. देन ऑन April 26 वो चेक बी का बैंक में डिपॉजिट किया, चेक मिला था उसको, तब क्या ट्रीट किया था, कैश. अब बैंक में जमा किया है, मतलब कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक टू कैश. बैंक टू कैश 2145. Withdrew cash for office use, cash to bank. $3,000. Paid rent by check. Received check from Mr. X. We are receiving a check और वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, किसी और को एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब अगेन जब चेक मिलेगा वी नीड टू ट्रीट दैट एज कैश. और एंडोर्स किया है टू मिस्टर वाई, तो बाय मिस्टर वाई, ये चेक दे दिया है वाई को 3000 कैश में, और वाई से हम मांगते कितना थे 3200, तो 200 इन डिस्काउंट कॉलम. सेल बाय डेबिट कार्ड, सेल बाय डेबिट कार्ड, अच्छा सेल किया है तो पैसा आया ऑन April 30. टू सेल्स डेबिट कार्ड से किया है, मतलब सीधा बैंक अकाउंट में ही आया होगा. डिस्काउंट कॉलम में कभी बैलेंस फाइंड नहीं करेंगे. दिस 60 इज टोटल डिस्काउंट अलाउड and this 275 is total discount received. Cash and bank में will find out the balance. Closing cash balance. Correct. क्वेश्चन 2 देखिए. क्वेश्चन 2 में यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक क्या होता है, डे टू डे सनरी एक्सपेंसेस के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए
बार बार हम परेशान ना हो इसलिए एक सब कैशियर, एक जूनियर कैशियर को एक लमसम पेमेंट दे देते हैं, जिसमें से वो सारे के सारे मिसलेनियस एक्सपेंस पे करता है। वो जूनियर कैशियर, वो पेटी कैशियर जो बुक मेंटेन करता है, वी कॉल इट पेटी कैश बुक. Petty cash book can be maintained in two ways. It can be a simple petty cash book or it can be an impressed petty cash book. सिंपल पेटी कैश बुक में एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट, डिसाइड किया हुआ अमाउंट हम हर वीक या हर फोर्टनाइट या हर मंथ उस जूनियर कैशियर को दे देते हैं टू पे ऑफ द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. इम्प्रेस्ड सिस्टम में हम एक फिक्स्ड अमाउंट उसको पे नहीं करते हैं, हम एक फिक्स्ड बैलेंस उसके पास मेंटेन करते हैं. फिक्स्ड बैलेंस मेंटेन करते हैं मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड जितना भी खर्चा हुआ उतना ही उसको पे करेंगे, तो उसका बैलेंस वापस पहले जितना हो जाएगा. तो दैट इज अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम. तो इन दिस क्वेश्चन 2 you are supposed to prepare a petty cash book by impressed system. Impressed amount is how much? 20,000. सो ओपनिंग बैलेंस देखिए हमको दिया है 1 अप्रैल 12,000 का बैलेंस दिया है. फर्स्ट अप्रैल को 12,000 का बैलेंस दिया है. इम्प्रेस्ड अमाउंट 20,000 है, मतलब 20,000 का बैलेंस मेंटेन करना है. तो ऑन 1 अप्रैल इटसेल्फ 8,000 रुपीज चीफ कैशियर से हमको और मिलेगा. चीफ कैशियर से 8,000 रुपीज कैश मिला. 2 अप्रैल ऑटो फेयर पे किया हमने, मतलब कन्वेंस पे किया. ऑटो फेयर 500 का पे किया है. फॉर 3 अप्रैल कार्टेज पे किया है. फोर्थ अप्रैल फॉर पोस्टल स्टैम्प्स हमने पे किया. 500 रुपीज. वेजेस 600 पे किया है. वेजेस 5 अप्रैल को पे किया 600. स्टेशनरी 400 पे किया. रिपेयर्स 1500 पे किया ऑन 6 अप्रैल. बस फेयर 100 रुपीज पे किया ऑन 6 अप्रैल. दैट इज कन्वेंस. रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 3,000.
Cartage paid 400. स्टेशनरी के लिए पेमेंट दिया 2000. Total expenses paid. $11,500. So by balance carried down, is 8,500. Total expenses here are 12,000. So balance carried down is 8,000. Correct? Pause and copy.